बीती शाम मुंबई में हुई फिल्म रॉकेट शिप की खास स्क्रीनिंग, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंचे सोनू सूद, ईशा कोपेकर और हरमन राय सहगल। भाई ये फिल्म बेहद ही कमाल है। ऐसे में इस फिल्म की खास झलक देखने के लिए पहुंचे ये कलाकार। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये फिल्म देखकर उन्हें कैसा लगा और कितने एक्साइटेड हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इज़ वेरी यंग, 22, मेरे से बस कुछ साल ही बड़ा है। बट आई ऑलवेज आई स्टार्टेड माई करियर सोलो विदाउट एनी गॉडफादर एंड आई नो द फीलिंग। बट ये एक कॉन्शियस मेरा एक डिसीजन था, चॉइस था कि मुझे ये न्यू स्टूडेंट्स के साथ काम करना है, और केवल इसलिए काम नहीं करना है कि मुझे उनको सिर्फ सपोर्ट करना है। बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक when you start fresh and when you start out new, you are full of passion, full of new ideas. Storytelling भी बहुत fresh होती है, and I wanted to be a part of this kind of a project where I wanted to collaborate with these new students who had this raw passion. तो because I wanted to learn, I'm also काफ़ी गैप के बाद मैं वापस एक शुरुआत कर रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें, स्टोरी टेलिंग, कंटेंट बहुत चेंज हो गया है. सो आई ऑल्सो वांटेड टू स्टार्ट विद समथिंग न्यू. आई वांटेड टू लर्न येट वंस अगेन, and what better opportunity than these students, and I wanted to collaborate, also reiterate the confidence. मतलब जैसे उनको एक स्टार या एक experienced actor उनके साथ कोलैबोरेट करता है, इट्स ईजियर फॉर देम टू reiterate. उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल्स है वो एक दूसरे हाइट पे पहुंच जाती है. सो आई वांटेड देम टू वॉइस दैट, आई वांटेड दैट कॉन्फिडेंस टू देम टू वॉइस दैट कॉन्फिडेंस. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये प्रोजेक्ट करूँ. फर्स्ट पॉइंट ये है, एंड आई कांट टेक दैट अवे, इज दैट एक होता है कि we know people or we know certain things, and there's another thing where we make use of those kind of avenues to create a project. Harman is known to me, I know him. He came to me with this project, but I was very clear that Harman, yes, I will definitely be a part of this project only if the content and the script makes sense to me. And it was about a single mother. It was a mother-daughter relationship, and that really ticked because I'm very close to my daughter Rihanna, and it's a very emotional. Storytelling is really beautiful. Once you see it, you'll know what I'm saying. 22-25 मिनट की फिल्म है. 22 minutes. 22 मिनट की फिल्म है, and it is beautiful. So it is, I think, जो हम बोलते हैं ना, heart, and I think this film has all of it. So that was the main reason why I chose to do this film, besides the fact that of course I knew Harman, but that is not the only reason. For me, content, script is very important, and you must have seen that in the earlier films that I've done, whether it is Shabri, Ek Vivah, Dawn, Kya Cool Hai Hum. Right. I've always done and played different characters. I don't think I'd yet tapped this. शॉर्ट फिल्म हो, लॉन्ग फिल्म हो, पैरेलल फिल्म हो, कमर्शियल फिल्म हो, फिल्म है, मैं एक्टर हूँ. That is constant, and that will never change. So many big people is just one big film away. Remember that. Okay. So you never know. Yeah. Harman has just started. Correct. You never know what happens next. But the main reason, like I'm again saying, is the fact that these kids, these students are so full of fresh new ideas. I know what you're trying to say, whether it was, I was not biased because I know him and he got me this. No, I'm the kind, if I had not liked the project or if I had not liked the script, I would have told him. And I'm sure he would have taken it in his stride, और बहुत ही मतलब in a nice way would have said, okay fine दीदी, आपको अच्छा नहीं लगा, no problem. We'll do this either without you or probably we'll get you a better script, whatever. But it just happened. I guess when things have to happen, it just happens. Yes, I've known Harman for many years. What I know of him as just Harman, who's not a producer, is very different from Harman, the producer. Very committed, a different side, little scary, uh, strict. I've never seen him like that off camera in my personal life. But I think that's required. You know, you cannot be the same
with family and friends, and you can't be the same on a professional ground. So, but yet with me, of course, because he knew he was dealing with somebody who already comes with that kind of experience, he was a little, थोड़ा सही था, बहुत strict नहीं था मेरे साथ. And he also realized that, Didi is not only coming with experience, but also she's coming on the set with her clothes. She's coming on the set with everything that she can probably help the film with. So Full package for us. yes. So तो थोड़ा सा मेरे साथ he was nice, he was sweet. He is a sweet guy. Well, jokes apart, Harman is a very grounded soul. जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नमक, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे शक्कर, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मिर्ची पाउडर. He's exactly like that. So I have no complaints, and I really wish him lots of love. My blessings always with him. I have seen him grow. So I really want to see him grow professionally too. Yes. Oh, of course, I'd like to work again. I think the industry is not completely complete without Isha Gopika. I would want to work again. I have some great scripts coming my way, but I have to decide what I want to do. Now with OTT also, there's very good content. And yes, I've been meeting people, I've been getting great responses, and I think 2026 you'll see me on either the big screen or on OTT. Well, great. Of course, I would love it. But this time, Arman? This time we'll do something big. Yes. Something very this exciting. This is also very big. See, this is the first thing. The first thing होता है ना, first love, ये पहली. First baby. हाँ, first baby. Right. तो पहला बच्चा हमेशा प्यारा होता है. So this is very close to our heart. But yes, after this, the Lot of surprises. sky is the limit. Yeah. बहुत महीनों की मेहनत आज पूरी हो रही है. आज हम रॉकेट शिप की सक्सेस के लिए आए हैं यहाँ पर. वी ऑल आर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल ईशा मैम को थैंक यू, क्योंकि बॉलीवुड की इतनी हिट मूवीज़ करने के बाद उन्होंने हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे हेल्प किया है. और दिस इज़ माई लास्ट फिल्म एज अ स्टूडेंट. इसके बाद मेरा करियर अब स्टार्ट होता है. तो एक स्टूडेंट फिल्म को ट्रिब्यूट देने के लिए आज हम यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इम्पा में आए हैं, फैमिली फ्रेंड्स, इंडस्ट्री फ्रेंड्स के साथ. उनको हमारा प्रोडक्ट दिखाने के लिए, हमारा लास्ट फाइनल चीज़ दिखाने के लिए आए हैं. दिस फीलिंग आई थिंक मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ. जो दिल में है वो मुंह पे आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग एंड वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अब रियल जर्नी स्टार्ट होती है. सो दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन, अ ड्रीम जो मैंने पिछले 10 साल से देखी है और वो आज जाके पूरी हो रही है. विस्लिंग वुड्स की हेल्प से एज अ स्टूडेंट मेरी प्रॉपर पूरी टीम है. अर्जुन मेनन है, मेरे DOP है भागवत. उन सब के विजन्स के साथ हमने ईशा मैम को कन्विंस किया. पहले स्टोरी को हम लेके आए पेपर पे, फिर हम स्टोरी को स्टोरी बोर्ड पे लेके आए. सो ईशा मैम को कन्विंस करना, ये स्टोरी के लिए लाना, ये पूरी टीम की मेहनत थी. हमने स्क्रिप्ट बहुत बदली हैं. जनवरी से मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट आया था. वी पिच्ड इट टू ईशा मैम इन आई थिंक मे, एंड नो मई से अप्रैल वी पिच्ड इट, और मे वी शॉट दिस फिल्म. इट टुक अस 3 days टू शूट दिस फिल्म. ईशा मैम के साथ वर्क करना एक्चुअली इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर अस, बिकॉज एक A-लिस्टर को स्टोरी में लाना और उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हम स्टूडेंट्स को भी मिला है. एंड पर्सनली एज शी इज़ माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर. एंड मुझे उनके साथ न्यू टेक्निक्स, न्यू चीज़ें, एक्टिंग कैसे होती है, प्रोड्यूसिंग तो मुझे आता है, प्रोडक्शन आई नो हाउ टू हैंडल, बट एक्टिंग में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं. उनके साथ डायरेक्शन का एक व्यू भी मिलता है, उनके साथ मेकअप का भी, हेयर का भी, सब व्यू मिलता है. तो इट वाज अ फुल पैकेज. मतलब मूवी से ज़्यादा हमको उनसे ज़्यादा सीखने मिला. सो इट वाज अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस विथ हर. ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एक जर्नी आपको पता होती है कि आपको क्या लेनी है लाइफ में. सो इफ़ यू नो दैट यू हैव दैट स्किल, you can understand that skill, you will surely know that you can take up that skill. For me, I wanted to do acting first. मेरा करियर ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है. एक्टिंग से मुझे समझ आया कि नहीं, मेरा पाथ डायरेक्शन में बेटर है, तो मैंने डायरेक्शन सोचा. बट जब तक मैं विस्लिंग वुड्स की एंटर किया, मैंने एडमिशन दी, एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट समथिंग नोन एज प्रोड्यूसिंग ऑल्सो, तब मुझे समझ आया कि जो मेरे मैनेजमेंट स्किल हैं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसको सबको साथ में ला के मैंने प्रोड्यूसिंग चूज़ किया. कमिंग टू क्वेश्चन अबाउट न्यू जनरेशन पीपल, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ सबको, और जो भी मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ना लेफ़्ट देखो ना राइट, कर दो.
देखा जाएगा आगे क्या होगा। ये मैं एक्टर्स को भी बोलता हूँ, ये मैं प्रोड्यूसिंग को भी बोलता हूँ। प्रोड्यूसिंग इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल, इफ़ यू नो मैनेजमेंट, इफ़ यू नो योर स्किल्स, यू कैन ईजिली डू। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस पार्ट ऑफ इट, क्योंकि प्रोड्यूसिंग में सिर्फ मैनेजमेंट नहीं आता है, बिजनेस और फाइनेंस भी आता है। एंड बिजनेस नहीं सीखोगे तो धंधा होगा नहीं, तो धंधे के बिना आपकी फिल्म चलेगी नहीं, तो धंधा बहुत ज़रूरी है। सो विद मैनेजमेंट, विद बिजनेस, यू शुड नो हाउ टू mix both the things, and then you can learn producing, and that's what Whistling Wood taught us. So not with management, उन्होंने हमको ये भी सिखाया कि धंधा कैसे होता है। So ईशा मैम ने I think one of the biggest hits दिए हैं, Right. डॉन, क्याकुले हम, कृष्णा कॉटेज, there's the list which goes on, including with South. वो खुद 12 घंटे हमारे साथ सेट पे थे, और हमारी शिफ्ट्स थी रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। सो इट वाज नाइट मॉर्निंग बोथ शिफ्ट। वो सेट पे सोए भी हैं, उन्होंने शॉट भी दिया है। हमने वो 12 घंटे की शिफ्ट 12 घंटे में ख़त्म की है। आजकल प्रोड्यूसर्स के साथ क्या हो रहा है, फॉर लाइक ऑल अराउंड, इवन हमारी मीडिया इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर का जब टैग आता है तो लोगों को लगता है उनके पास पैसा है, बट प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। प्रोड्यूसर की और भी चीज़ें होती हैं एज अ प्रोडक्शन हाउस, कोलैबोरेशंस होते हैं। एज अ प्रोड्यूसर जब मैं ये 8 आवर की बात हम करते हैं, आई एम प्रो ऑल्सो एंड कॉन ऑल्सो। कौन इसके लिए, क्योंकि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वन एक्टर ओनली, देन देर आर 300 पीपल ऑन द सेट वर्किंग विद मी, जो एक 12 आवर के लिए पर्टिकुलर शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं। उनका शिफ्ट कम होकर 8 आवर्स होता है, प्लस एक्टर उतना ही फीस लेता है। और अगर मैं 8 आवर्स की शिफ्ट रखूँ तो वो 1 महीने की शूट में 2-2.5 महीने में शूट करता हूँ, तो एक्टर्स तो वो फीस में मानेंगे भी नहीं। 8 आवर्स की शीट वर्क कैसे करेगी मैं आपको बता सकता हूँ। इफ़ एक्टर इज़ रेडी to work in a lesser price, and if the actor is not only thinking about themselves, also thinking about the producer and people around, तो we can do that 8-hour shift. Difference ये है कि एक्टर चेंज हो सकता है, प्रोड्यूसर को नहीं समझ आया तो एक्टर मूवी से निकाला जा सकता है, मतलब चेंज कर सकते हैं हम एक्टर को। लेकिन हमारी जो क्रू है हमारे साथ वर्क कर रही है, वो क्रू के साथ और 100 फैमिलीज़ हैं जो क्रू के कारण खाना खा रही हैं, और वो क्रू हमारी प्रोडक्शन के कारण खाना खा रहे हैं, उनको मैं नहीं चेंज करूँगा। क्योंकि एक्टर नया आएगा, फिल्म वापस बन जाएगी, लेकिन क्रू नहीं होगा तो मैं खुद कैमरा पकड़ के, या खुद मेरे जितने भी मेरे एडीज़ हैं, एपीज़ हैं, मेरे सेट पे जो लोग हैं, कैमरामैन हैं, मैं ट्रॉली और चीज़ें तो उठा नहीं सकता हूँ, या ना हम ट्रॉली उठाएंगे कि काम या अपने प्रोडक्शन और डायरेक्शन के काम पे ध्यान दें। सो अगेन इट इज़ प्रो एंड कॉन। तो लोग बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन जो मेन जहाँ पे चीज़ बनती है, जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं बात करने, उनसे भी पूछना बहुत ज़रूरी है। बट सीइंग एज अ वुमेन, आई ऑल्सो सपोर्ट हर कॉज, बिकॉज वॉट एवर द कॉज शी हैज़ सेड, वो भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इट हैज़ टू गो बोथ द वेज। इफ़ इट इज़ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम, दे हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट अस। सो रॉकेट शिप के साथ अब हम बहुत फेस्टिवल्स टारगेट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, एंड नाउ वी आर इन टॉक्स विद लॉट ऑफ OTT. I won't name the OTTs because we have not yet confirmed, but we are planning to get in collaboration to release this film with an OTT. Of course, Whistling Woods has all the rights, so Whistling Woods और हमारा collaboration के साथ we'll go to an OTT. I own my own production house, which is known as HSS Production, and right now I have started my work on my feature film, which should be on tables by December, and then we'll start our pre-production, casting, everything. It's a big budget film, it's a big cast film. मैं आगे और कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी भी बहुत चीज़ें उसके बारे में चल रही है, बट येस वी आर स्टार्टिंग अ वर्क अबाउट इट वेरी सून, एंड वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स विद लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउस फॉर दिस, एंड आई हैव गॉट वन very good actor on board and who is ready to do the film also. I have a message for all aspiring filmmakers. जो दिल में आता है वो करो, रुको मत, don't take any pause, don't think about anything. अगर मन करा है फिल्म मेकिंग में जहाँ जाना जाओ, उल्लू मत बनो। बहुत लोग बैठे हैं बाहर उल्लू बनाने के लिए। Think wise, go to schools like Whistling Woods or anything which you like, but filmmaking is also an option. You can get out of your books theories and you can get on floor and you can get your stories into reality. I think that's the best part you can do with filmmaking. आपकी खुद की imagination जब स्क्रीन पे आती है तो कुछ और ही फील होता है। I think आज वो रॉकेट शिप के साथ मैं इसके बाद फील करने वाला हूँ।
भाई अब देखना होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितना पसंद आती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।